Hello everyone, myself Meenakshi Upadhyay, your chemistry teacher. Welcome to all of you in our Balloony family. So guys, today I am here to introduce you about your chemistry syllabus. So in class 11th, you have to study total of 14 chapters. Your first chapter is some basic concepts of chemistry. In this chapter, you will study about matter, its classification, all the terms associated with it. Second chapter is structure of atom. In this chapter, you will study about the various models of atoms proposed by various scientists, and also you will study some new concepts like dual nature of matter, quantum numbers, etc. Then third chapter is classification of elements and periodicity in properties. In this chapter you will study about the periodic table in detail and also the characteristics associated with the periodic table. Then your unit 4 is chemical bonding and molecular structure. In chemical bonding, you will study about the various types of bonds like ionic bond, covalent bond, various bond parameters and various theories associated like valence bond theory, Vesper theory, molecular orbital theory. All these you will study in detail. Then your fifth chapter is states of matter. In this chapter you will study about gaseous and liquid state in detail. Next chapter is chemical thermodynamics. In chemical thermodynamics you will study about the different forms of energies in chemical reactions. Your seventh chapter is equilibrium, in which you will study about the equilibrium established in physical processes, chemical processes and ionic reactions. Then your eighth chapter is redox reactions. In redox reaction you will study about the oxidation and reduction reactions. Then chapter 9 is hydrogen, in which you will study about the hydrogen in detail and the various compounds in which hydrogen is involved like water, heavy water, hydrogen peroxide, all these. Then your 10th chapter is S block elements, in which you will study about the group 1 and group 2 elements like alkali metals and alkaline earth metals in detail. Next chapter, chapter 11th is P block elements. P block element chapter is lengthy, so half of the chapter you will study in class 11th and the rest half you will study in class 12th. It includes group 13 to group 18 elements. So group 13 and group 14 you will study in detail in class 11th, while from group 15 to group 18 you will study in class 12th. Your next chapter is chapter number 12 is organic chemistry, in which you will study about the basic principles and techniques and IUPAC nomenclature of organic compounds. Then chapter 13 is hydrocarbon. It is also of organic chapter. In this chapter you will study about the aliphatic hydrocarbons like alkanes, alkenes, alkynes and aromatic hydrocarbons like benzene in detail with chemical reactions, their methods of preparation, their uses and all. Your last chapter, chapter number 14 is environmental chemistry, in which you will study about the different types of environmental pollution, preventive measures, etc. So this was all about your chemistry syllabus. After this, now I am going to start with the very first chapter of your book, that is some basic concepts of chemistry. So let us start with the basic thing. You are studying chemistry, so first of all you should know about the chemistry, what the chemistry is. केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री. देर आर डिफरेंट डेफिनेशंस, बट द accurate exact definition of chemistry is that branch of science which deals with the study of matter. chemistry वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करते हैं. लेकिन मैटर के बारे में भी हम क्या स्टडी करते हैं, तो मैटर के बारे में भी हम स्टडी करते हैं कि मैटर का कंपोजिशन क्या है, किस किस चीज़ से मैटर बनता है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, और वो कौन कौन से चेंजेस है जिसमें मैटर जाता है, और कौन कौन से लॉज हैं जिनको मैटर फॉलो करता है. तो ये हमारी केमिस्ट्री की डेफिनेशन हुई कि केमिस्ट्री क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे. इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर. द all those changes in which matter undergoes under different conditions and all those laws which are followed by the matter.
तो ये हो गया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी स्टडी केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री को क्यों स्टडी करते हैं, क्या ज़रूरत है केमिस्ट्री को स्टडी करने की। केमिस्ट्री के एवरीडे लाइफ में इतनी इम्पॉर्टेंस है, इतना स्कोप है कि उसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम अपनी जो आज की लाइफ है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन टूडेज़ लाइफ विदाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बिना हम अपनी आज की लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। आप जितने भी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे देखेंगे, आपको हर जगह केमिस्ट्री ही दिखाई देगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर के फील्ड में देखें, फार्मर आर यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। इन एडिशन टू फर्टिलाइजर्स ही ऑल्सो यूज़ इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा। तो और ये सब कंपाउंड्स क्या हैं, जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फंजीसाइड्स हैं, ऑल दीज आर केमिकल कंपाउंड्स जिसे फार्मर यूज़ करता है। फर्टिलाइजर्स से वो क्रॉप यील्ड को इंक्रीज़ करता है और इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, इन केमिकल्स से वो अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करता है इंसेक्ट्स, फंगस और पेस्ट से। तो ये हो गया एग्रीकल्चर के फील्ड में भी क्या है, केमिस्ट्री। देन इन द फील्ड ऑफ फूड, अगर हम फूड के फील्ड में देखें तो केमिस्ट्री ने हमें क्या प्रोवाइड किया है। केमिस्ट्री हैज़ प्रोवाइडेड अस वेरियस फूड प्रिजर्वेटिव्स, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रिवेंट आवर फूड फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड रेंसिडिटी। हम फूड को ऑक्सीडेशन और ख़राब होने से, रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं। देन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, अगर हेल्थ के फील्ड में देखा जाए तो केमिस्ट्री हैज़ प्रोवाइडेड अस लाइफ सेविंग ड्रग्स। केमिस्ट्री ने हमें लाइफ सेविंग ड्रग्स प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि एनेस्थेटिक्स हो गया। एनेस्थेटिक्स को हम यूज़ करते हैं सर्जिकल ऑपरेशन के लिए। देन एंटीपायरेटिक्स हो गया, जिन्हें हम फीवर को क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स, दीज आर द ड्रग्स, दीज आर द मेडिसिन विच आर यूज टू क्योर स्ट्रेस एंड मेंटल डिसऑर्डर्स। मेंटल इलनेस को क्योर करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा सिस्प्लैटिन, टैक्सोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा AZT, एजिडोथाइमिडीन, एक केमिकल कंपाउंड है जिसका यूज़ करते हैं एड्स के ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा अगर हम कंस्ट्रक्शन में देखें तो जितना भी बिल्डिंग मटेरियल हमें मिलता है, लाइक सीमेंट हो गया, सिलिका, क्ले, ग्लास, कंक्रीट, ये सब क्या है, केमिकल कंपाउंड्स है। केमिकली मैन्युफैक्चरिंग होती है सबकी, तो कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग मटेरियल के लिए भी वहाँ पर भी केमिस्ट्री का यूज़ है। सिंथेटिक फाइबर, केमिस्ट्री ने हमें डिफरेंट टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स दिए हैं। इसके अलावा अगर हम कंफर्ट्स, प्लेजर और लग्जरीज़ के फील्ड में देखें तो भी वहाँ पे केमिस्ट्री है। हाउस होल्ड यूटेंसिल्स देखिए, हाउस होल्ड, वो सब क्या है, केमिस्ट्री है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स है। ऑटोमोबाइल्स में देखेंगे जो भी हमारे ऑटोमोबाइल्स रन होते हैं सब पेट्रोल डीजल से रन होते हैं। पेट्रोल डीजल क्या है, ऑल दीज आर केमिकल कंपाउंड्स। तो जहाँ पर भी आप देखेंगे आपको सब जगह केमिस्ट्री दिखाई देगी। तो यही केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस और स्कोप है, और इसकी इंपॉर्टेंस और स्कोप को देखते ही केमिस्ट्री को स्टडी करना नेसेसरी है। तो जितनी भी हमारी बेसिक नीड्स हैं, जितनी भी हमारी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, सब हमें कहाँ से प्रोवाइड होती हैं, सब हमें केमिस्ट्री ने प्रोवाइड किया है। तो ये था हमारा बेसिक कि केमिस्ट्री क्या होता है और केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस और स्कोप क्या होता है। इसके बाद आज मैं तुम्हें एक और टॉपिक कराऊंगी, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो ये सब आपने पहले का पढ़ा हुआ है, मैटर और मैटर का क्लासिफिकेशन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है आपके लिए, 9th क्लास में आप पढ़ के आए हैं, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं किया है। मैंने एक फ्लो डायग्राम से किया है और आप भी सिर्फ फ्लो डायग्राम से ही करना, ज़्यादा डिटेल में करने की इसको ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आप पढ़ के आए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अब मैटर और मैटर की क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम मैटर को डिफाइन करते हैं। मैटर होता क्या है, तो मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो स्पेस लेती है और जिसका अपना एक मास होता है उसे हम मैटर बोलते हैं। अब मैटर को हम क्लासीफाई करते हैं 2 वेज से। फर्स्ट इज़ फिजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड इज़ केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो फिजिकल क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम मैटर को डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड, थर्ड इज गैस। तो सॉलिड की बात करें तो सॉलिड क्या है, मैटर की वो स्टेट है जिसमें डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप।
गैसेज नीदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। तो ये सबको पता है, सब लोग ये 9th क्लास में पढ़ के आए हैं ऑलरेडी। अगर हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं तो क्या है, जैसे अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड के केस में क्या है, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, टाइटली पैक्ड हैं, तो इसलिए इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। लिक्विड के केस में पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे होते हैं, तो स्पेस होने की वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड के कंपैरिजन में वीक हो गया। गैसेस के केस में क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं एक दूसरे से, इसलिए गैस मॉलिक्यूल्स में क्या है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वीकेस्ट है, सबसे कम है। दूसरा, अगर हम स्पेस की बात करें, इंटर पार्टिकल स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो सॉलिड के केस में क्या है, पार्टिकल स्पेस टाइटली पैक्ड है तो कोई भी स्पेस नहीं है। लिक्विड के केस में लेस स्पेस, लेकिन गैसेस के केस में सबसे ज़्यादा स्पेस है। तीसरा, अगर हम रिजिडिटी की बात करते हैं तो सॉलिड्स हाईली रिजिड होते हैं, लिक्विड उससे कम, गैसेस सबसे कम। अगर हम फ्लूइडिटी की बात करें तो सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, लेकिन लिक्विड्स फ्लो हो सकते हैं और गैसेस भी फ्लो हो सकते हैं। गैसेस की फ्लूइडिटी मैक्सिमम होती है। अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेसिबल, लिक्विड्स कैन बी कंप्रेस्ड एंड गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो कि सॉलिड के केस में स्पेस तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो गया। यहाँ पे स्पेस थोड़ा ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा हो गया। गैसेस के केस में स्पेस मैक्सिमम होता है तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा। तो ये था फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस विद देयर जनरल प्रॉपर्टीज। नाउ कम्स टू केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड होता है। तो on the basis of chemical properties, matter is classified into two categories. First is pure substance, second is mixture. तो सबसे पहले हम pure substance की बात करते हैं। Pure substance नाम से पता चल रहा है pure, as the name indicates pure, so it means pure substances are those substances which contain only one kind of particles, जिनमें सिर्फ एक ही काइंड के पार्टिकल्स होते हैं। प्योर सब्सटेंसेज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट इज एलिमेंट, सेकंड इज कंपाउंड। अगर हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट क्या है, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसका मतलब क्या, नीदर बी ब्रोकन इनटू सिंपल नॉर बिल्ड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस। जो ऑलरेडी सिंपल होगा तो उसको ना तो हम सिंपल में ब्रेक कर पाएंगे क्योंकि पहले से ही सिंपल है, ना ही हम उसको सिंपल सब्सटेंसेस से बना पाएंगे क्योंकि सिंपल से बनाया तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो एलिमेंट सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। लेकिन अगर हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कंपाउंड्स कंटेन्स टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन फिक्स्ड रेशो बाय मास। तो कंपाउंड क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है, लेकिन वो एलिमेंट कैसे कंबाइन होंगे, फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होंगे, मास के फिक्स्ड रेशो में। तो ये हो गया एलिमेंट, कंपाउंड। अब एलिमेंट है, एलिमेंट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। ये भी आप पढ़ के आए हैं क्लास 10th में। तो मेटल्स क्या हैं, जनरली सॉलिड्स होती हैं, लस्ट्रस मीन्स शाइनी अपीयरेंस, मैलिएबल मीन्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, डक्टाइल मीन्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, एंड मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देन एग्जाम्पल कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होती हैं, नॉन लस्ट्रस, नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटीज। एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन जनरल प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। देन मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स possess properties of both metals as well as non metals, like example silicon, arsenic, antimony, bismuth. Then कंपाउंड्स, कंपाउंड्स को हम फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमें लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, मीन्स जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलेंगे, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो जितने भी हमारे कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल, सब ऑर्गेनिक होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो नॉन लिविंग सोर्स से हमें मिलते हैं, जो कि रॉक्स एंड मिनरल्स में मिलते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो रॉक्स एंड मिनरल्स में मिलते हैं, जितने भी आपके सॉल्ट्स हैं, सब इनऑर्गेनिक होते हैं। तो ये था आपका प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के बाद जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो दैट इज मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या है, मिक्सचर इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स।
बट इन एनी प्रोपोर्शन। तो मेजर डिफरेंस है मिक्सचर और कंपाउंड का, दोनों ही 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होने से बनते हैं, लेकिन कंपाउंड के केस में जो कॉम्बिनेशन होता है फिक्स प्रोपोर्शन में होता है मास के, लेकिन मिक्सचर में कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता, किसी भी प्रोपोर्शन में वो कंबाइन हो जाते हैं तो मिक्सचर बन जाता है। मिक्सचर 2 टाइप का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस, होमो मीन्स सेम, मीन्स ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन सेम हो, सेम मतलब यूनिफॉर्म। तो होमोजीनियस मिक्सचर आर दोज मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या है कि जो भी हम 2 चीज़ें यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, दे गेट कम्प्लीटली मिक्सड विद ईच अदर, कि वो एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगी, एक दूसरे में अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगी, कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको नेक्ड आई से, तो वो हो गया यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो सॉल्यूशन बनते हैं, एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। हेट्रोजीनियस वो मिक्सचर होते हैं जिनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता, जैसे मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड हो गया, या मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर हो गया, तो ये होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें कंपाउंड एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होंगे, कंप्लीटली मिक्स नहीं होंगे। तो ये सब आपका मैटर वाला टॉपिक था, मैटर और मैटर का क्लासिफिकेशन। तो आज मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाए, बेसिक से टॉपिक थे दोनों। तो आपका आज का होमवर्क यही होगा कि आपने ये दोनों टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं, अच्छे से रिवाइज़ कर लेने हैं, और साथ में मैंने आपके लिए एक होम असाइनमेंट बनाया है, ये आपका होम असाइनमेंट है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप करेंगे, पहले अपने दोनों टॉपिक प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद आप ये होम असाइनमेंट करेंगे और साइड बाय साइड अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके गाइज, थैंक यू।